Hey everyone, welcome to the Autism Without Borders YouTube channel. Here you will find valuable insight about autism, developmental delays, neurological disorders, their red flags, potential causes, and effective interventions. ऑटिज्म और दीगर न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की अलामात, उनकी वजूहात, उनके असरात और मुमकिन हल के बारे में मुकम्मल आगाही। Assalamu alaikum everyone, this is Kiran Tabassum here. I am an associate psychologist and project coordinator at Autism Without Borders. And I welcome you, all of you at Autism Without Borders platform. Thank you everyone for joining. Let's start this webinar with the recitation of few verses from the Holy Quran. So I request Sir Naushad, he is senior special educator, audiologist, and a speech therapist. So I request Sir Naushad to please recite few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Now, we formally start our webinar today. So I handed over our webinar to our moderator today, Ms. Nadia Riaz. She is our manager at Autism Without Borders, a special educator and autism consultant, sign language interpreter as well. So hand it over to Ms. Nadia Riaz. Okay. Thank you so much, Kiran. And I warmly welcome all our distinguished guests today. Thank you so much for taking your precious time here, and we are glad to have you all. So, as always, previously, we have been arranging different webinars, and we are really honored to have this webinar in collaboration with PP अब्यूज एंड प्रिवेंशन सोसाइटी एंड ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर्स। और अगर इधर हमारे साथ लोग हैं जिन्हें याद हो कि हमने कोरोना के टाइम पे आई थिंक सो इट वाज 2021 जब हमने पहली दफ़ा इंटरनेशनल ऑटिज्म वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें भी हमारे यही तीनों कोलैबोरेटर्स थे जिनके साथ हमने किया। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस कोलैबोरेशन, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आज का वेबिनार जैसे हमारे बाकी वेबिनार्स इंफॉर्मेटिव रहे हैं तो वो भी ऐसा ही साबित होगा। और सबसे पहले हमारा मतलब इस दफ़ा वी आर रियली ऑनर्ड कि डॉक्टर शाजिया मकबूल ने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया है, हु इज़ लाइक हु नो डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, उनके लिए जितना मैं बोलूँ कम है। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया मकबूल, शी इज़ प्रोफेसर एमिरेटस developmental behavioral pediatrics from the Children's Hospital Lahore. Professor Dr. Shazia is also the vice president of PPA. और इन्होंने she was the first one to introduce behavioral pediatrics in our country. एंड शेमैक जिसको हम सब जानते हैं, स्पेशली ऑल पीडियाट्रिशियंस यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान कल्चर उन्होंने ये स्क्रीनिंग टूल इंट्रोड्यूस किया है ऑटिज़म के लिए और बाकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग हेयर और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। तो शी विल बी हेयर टुडे विद अस एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस वेबिनार। विद दैट वी आल्सो हैव our distinguished guests as distinguished speakers, Dr. Azwar Rafiq, Dr. Shagufta Jabin, Dr. Mustafa Hussain। इन सबका मैं इंट्रोडक्शन साथ साथ इनकी प्रेजेंटेशन के साथ मैं फुल करवाऊंगी। And amongst panelists we have Professor Dr. Aisha Manaz, who will also be moderating the panelist session, Professor Mohsina Noor Ibrahim, Professor Dr. Wasim Jamalvi, and me myself Nadia. So we will be amongst the panelists। और बाकी जो भी हमारे मौजूद मेहमान हैं वो you all are amongst the panelists, आप अपने शेयर कर सकते हैं। जो भी आपकी राय है, आपके सवालात हैं, वो हम इंशाल्लाह लेते रहेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में भी प्लीज़ उनको लिखते रहिएगा। तो ये जो हमारा इस दफ़ा का थीम है, विच इज़ ऑटिज़म एंड ह्यूमैनिटी, लाइक एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू।
that is so close to, I think so, everyone's heart, because this covers the entire thing, that equality, promoting meaningful inclusion and accepting diversity, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि every child is valuable। और हमारा एक बहुत अच्छी जो मैं बात समझती हूँ कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कंडीशन, स्पेक्ट्रम क्या है, एक रेनबो जो डिफरेंट कलर से मिलके बनती है। तो वो अपनी खूबसूरती आप देखें कि डिफरेंट कलर्स की वजह से उसकी एक अपनी यूनिकनेस होती है, एक डाइवर्सिटी होती है, और वो अपना अहमियत उसकी उसी वजह से होती है। अगर मोनोटोनस होता, अगर एक ही कलर होता, तो वो उसका खूबसूरत ना होता। इसी तरह ये बच्चे सारे डिफरेंट एबिलिटीज के हामी होते हैं, और यही इस दुनिया की खूबसूरती है कि हर बच्चा डिफरेंट है। इसीलिए कहा जाता है, if you know one child with autism, you only knows one child with autism. So autism is not a disorder, it's not a disability, it's a different ability. और इन हर बच्चों की एक अलग स्ट्रेंथ है, एक अलग इनकी खसूसियत है। तो हमें इस वेबिनार को सुनने से पहले ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए आज का हमारा वेबिनार भी बहुत डाइवर्स है। तो हमारे दोनों टॉपिक्स बहुत डाइवर्स हैं, और एक हम सबको सीखने से इसको मिलेगा कि एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन है, जो कि एक इंटरवेंशन है लाइक डिफरेंट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। एंड सेकेंडली वी हैव फार्माकोलॉजी, सो साइको फार्माकोलॉजी, which will be covered by Dr. Mustafa. So ये एक इंशाल्लाह एक बहुत ही नया और यूनिक टॉपिक होने वाला है। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग एंड तक हमारे साथ रहें। So starting off with our first speaker, Dr. Isra Rafiq, जो कि consultant pediatrician हैं, lactation expert हैं, and she's also the project director for Autism Without Borders. So over to you, Dr. Isra, for introduction. अस्सलामु अलैकुम, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ज़बान की गिरा खोल दे और हमसे कम वक्त में बेहतरीन बात करवाए हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मैं इसमें सिर्फ जो है, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी ऑटिज़म का क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जो है वो पॉइंट्स थोड़े से डिस्कस करूंगी। और वी ऑल बिलीव ऑन हेल्दी चिल्ड्रन एंड हेल्दी नेशन, दैट्स व्हाई वी आर हियर और वी आर लर्निंग एंड शेयरिंग। और रवि सर नौशाद ने जो है बहुत अच्छी से रिसाइटेशन की है, और वो हमारे जो है वो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और काफ़ी चीज़ों में हमारे साथ होते हैं। और मेरा टॉपिक ये है कि जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे कि योर चाइल्ड नीड्स यू। एंड इट इज़ नॉट माई चाइल्ड, नॉट योर चाइल्ड। ये कौन से बच्चे हैं? वो बच्चे जो मेरे पास क्लिनिक में आते हैं, वो बच्चे जो एज अ टीचर स्कूल में हमारे पास आते हैं, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के पास आते हैं, या एज अ थेरेपिस्ट हमारे पास आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी डिफरेंट उसमें जो है हमारे पास आते हैं। और फिर इसके अलावा हमारे अराउंड, यानी कि ये चिल्ड्रन जो हमारी जो है कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जिनको हम लॉन में देखते हैं, हम पार्क में देखते हैं, हम मॉल्स में देखते हैं, हम एरोप्लेन में देखते हैं, हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, हम रेलवे स्टेशन में देखते हैं, ट्रेन में देखते हैं, और उनको हम अपना बच्चा नहीं समझते, है ना। तो हमें हर एक को अपना बच्चा, क्योंकि अगर एक न्यूरो डाइवर्जेंट हाइपर एक्टिव है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हालांकि न्यूरोटिपिकल भी उसी तरह बाद दफा बल्कि उससे भी ज्यादा बाद दफा हाइपर एक्टिव होता है। तो बच्चा है ना। तो योर चाइल्ड नीड्स यू, एवरी चाइल्ड नीड्स अस, एंड दैट ब्रिंग्स द एनविजन ऑफ द इंक्लूसिव सोसाइटी। जब तक हम हर बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझेंगे, हम आगे नहीं चल सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन की इस दफा थीम, जैसे कि नादिया ने बताया कि ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज वैल्यू, एवरी चाइल्ड अ स्पेशल चाइल्ड, और एवरी चाइल्ड स्पेशल चाइल्ड के साथ जो है ऑल ह्यूमंस आर स्पेशल,
कोई भी शख्स एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है ना। मैं किस तरह से सोचती हूँ, मैं किस तरह से बिहेव करती हूँ, और जिस तरह से दूसरा है, तो हमें जो है दूसरों को एक्सटर्नल उससे जो, वी शुड नॉट जज फ्रॉम द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल, उसके अंदर क्या है उसको हमको देखना है। तो बिल्कुल मैं पॉइंट्स आपको से, क्योंकि ये सारे बहुत बड़े टॉपिक्स हैं ना। एंड वी आर सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस इन ऑटिज्म। और जब हम ये कहते हैं कि सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस इन ऑटिज्म, जैसे नादिया ने कहा कि एक ऑटिज्म का बच्चा बस वो एक ही है ना, और दूसरा उससे अलग होगा, तो यही बात जो है सारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनके लिए भी यही बात है। और सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस इन ह्यूमन बीइंग्स, है ना, उनमें भी फर्क है। कोई भी शख्स दूसरे की तरह नहीं है, तो हमको दूसरे की उसमें सोच के और फिर हमें जो है बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। और बच्चों की बात क्यों, इसलिए कि बच्चे हमारे डिपेंडेंट हैं, है ना। चिल्ड्रन राइट्स आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, कोई नारे नहीं लगाते, कोई जलसे जुलूस नहीं निकालते, तो हमें उनके लिए बोलना है। वो पैदा हुए, हमने अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई, हमने उनके साथ ज्यादती की, हमने वैक्सीन नहीं लगाई, हमने उनके साथ ज्यादती की, वो बेचारे कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। तो चिल्ड्रन राइट्स आर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सबको जो है फोकस करना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा की मजलिस थी, और उन्होंने एक सवाल किया हम। वो सवाल क्या था कि व्हाट इज द फर्स्ट नीड ऑफ ए चाइल्ड। क्योंकि हमारा अभी इस वक्त जो है इंटरेक्टिव नहीं है, वरना मैं आपसे ही पूछती, जब मैं इन पर्सन करती हूँ तो मैं लोगों से पूछती हूँ कि व्हाट इज द फर्स्ट नीड ऑफ ए चाइल्ड। और बीइंग पीडियाट्रिशियन में भी मैं ये सोचूं कि शायद ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि फर्स्ट मिल्क इज ऑल्सो अ फर्स्ट वैक्सीन। उसी मजलिस में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थे। उन्होंने जवाब दिया, हम अ कॉन्शियस मदर, अ कॉन्शियस मदर, सिर्फ मदर नहीं, कॉन्शियस मदर, केयरिंग एंड लविंग। तो हम सबको एक कॉन्शियस मदर बनना है। चाहे बहुत से फादर भी हमारे पास हैं जो वाकई लाइक मदर वो करते हैं उन, और बच्चों की मदर्स उस तरह से नहीं कॉन्शियस होती जितने फादर्स होते हैं, है ना। तो ये भी होता है। और ये भी आपने देखा होगा कि बहुत सी खवातीन जो बहुत से बच्चों की माएँ होती हैं, बट दे आर नॉट कॉन्शियस मदर। और ऐसे भी हैं जिनके कोई बच्चे नहीं है और दे आर कॉन्शियस मदर। सो हम सबको जो है अपने बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए, योर चाइल्ड नीड्स यू, हमें कॉन्शियस मदर बनना है। और उसी की बेसिस पे हमें क्या करना है, कॉन्शियस सोसाइटी, द इंक्लूसिव सोसाइटी है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट है। एंड पार्टनर्स ऑफ द इंक्लूसिव सोसाइटी हु कैन हेल्प इन द ब्रिजिंग द गैप एंड प्रोवाइडिंग फिजिकल स्पिरिचुअल शेल्टर। अभी हम सब लोग बैठे हैं, हमारा जो है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी इसी तरह से थी कि हम में जो है डॉक्टर्स भी होते हैं, पीडियाट्रिशियन भी होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। ये सारी एक लिस्ट है, आप देखें कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, चिल्ड्रन केयर गिवर हैं। इसमें दादा दादी, नाना नानी वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन और नर्सेज, एजुकेटर्स, थेरेपिस्ट हैं। तो हम सब मिलके कैसे काम करें कि वो कॉन्शियस सोसाइटी बनाएं। That's why we are doing under the Autism Without Border Autism Surveillance and Management प्रोजेक्ट है हमारा। और उसका मकसद क्या है कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर फॉर राइट एंड अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म, और इंटरवेंशन, राइट इंटरवेंशन। क्योंकि इंटरवेंशन तो होता है लेकिन वो भी राइट नहीं होता। इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। वी वर द फर्स्ट हु मेड ऑटिज्म डायरेक्टरी। हमारी नादिया मौजूद है, उन्होंने स्टार्ट की थी, उसके बाद और भी डायरेक्टरीज बनी हैं। अब इसके जहन में रखते हुए, क्योंकि यहाँ सर्विलेंस की बात हुई है, वाई सर्विलेंस एंड स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट, हमें क्या मूव करना है फ्रॉम सिक केयर टू हेल्थ केयर। जब हम बीमार होते हैं तो हम लाखों खर्च करने पे तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब हम हेल्दी होते हैं तो हम एक पैसा, हम जो है, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक प्रोग्राम, हम प्रिवेंशन पे कुछ भी करते हैं तो लोग नहीं आते, चाहे हम मुफ्त करें। तो वी नीड टू मूव फ्रॉम सिक केयर टू हेल्थ केयर, बिकॉज एएसडी, सेरेब्रल पैल्सी, एडीएचडी सब बहुत कॉमन है। और फिजिकल शेल्टर के लिए हमारी पीपीए बहुत कर रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए अभी भी कमी है। और देखिए, मिस डायग्नोसिस एट अर्ली एज लीड्स टू द मिस्ड अर्ली इंटरवेंशन, और अर्ली इंटरवेंशन गिव्स बेस्ट रिजल्ट एज ब्रेन डेवलपिंग रैपिडली, है ना। बेबीज ब्रेन डेवलप इन द फर्स्ट 1000 डेज, जिसको हम कहते हैं विंडो पीरियड।
और सेरेब्रल पैल्सी का विंडो पीरियड डिफरेंट है और ऑटिज्म का डिफरेंट है। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स किस चीज पे एम्फसाइज करती है कि डेवलपमेंटल सर्वेलेंस एंड डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वेलेंस एंड स्क्रीनिंग के लिए हमको किस चीज पे जोर देना है कि रेगुलर वेल बेबी क्लिनिक्स या रेगुलर बेबी विजिट्स जो हैं वहां पे जो है क्लोज ऑब्जर्वेशन और उसके साथ साथ जो है वो ग्रोथ मॉनिटरिंग डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, और हमें अच्छी तरह से उस बच्चे को देखना और किस तरह से नेक्स्ट हमें क्या करना है। क्योंकि जो बेबीज ब्रेन डेवलप इन द फर्स्ट 1000 डेज एट अ पेस नेवर रिपीटेड अगेन, तो ये बहुत ही प्रेशियस होते हैं हमारे पास। क्योंकि सारे बड़े बड़े टॉपिक है इसलिए मैं बहुत तेजी से जा रही हूँ, और क्योंकि स्टेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कि 2026 का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 1 in 127 पीपल है ना ऑटिस्टिक हैं। फिर ये यूएस की स्टडीज है 1.8% ऑफ द चिल्ड्रन इन द यूएस है। और ये आप सीडीसी के देखें कि 1 in 31, द लेटेस्ट फिगर जो है जो हमने किया था लास्ट ईयर जब मैंने प्रोग्राम किया तो उसके बाद अभी नई नहीं आई है। एंड अकॉर्डिंग टू सीडीसी वी आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ ए बिग ऑटिज्म कम्युनिटी। तो ये ऑटिज्म पर हमें बार बार सेमिनार वेबिनार करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। और ऑटिज्म के बारे में जैसे हम सबको पता है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डॉक्टर शाजिया मौजूद हैं और डॉक्टर शाजिया से हमने बहुत सीखा है और उसको हमने स्प्रेड करने की भी कोशिश की है। तो साइंस ऑफ ऑटिज्म में आप देखें कि बिफोर अ चाइल्ड टर्न्स 3 केयरफुल ऑब्जर्वेंस कैन सी द साइंस ऑफ द ऑटिज्म ना। रिपीटेड रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स, रॉकिंग, स्पिनिंग, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, डिलेज इन लर्निंग टू टॉक, रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, इकोलेलिया जिसको कहते हैं, गेटिंग अपसेट बाय माइनर चेंजेस। लेकिन टॉप में जो बोल्ड क्या लिखा है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज साइंस कैन अकर इन द चिल्ड्रन विदाउट एएसडी। और ये जो है ना ये साइंस है। देखिए इसके एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर किसी को फीवर है तो हम सारी उम्र उसको पेनाडॉल नहीं देते। हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ फीवर। मलेरिया है कि टाइफाइड है कि वायरल है, उसके अकॉर्डिंगली हम डील करते हैं। तो सिर्फ इन साइंस के पीछे हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस खुद बनानी है। ये नहीं कि अमेरिकन ने बना दिया तो हम उसको बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है। हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे बहुत जोर देना है। इसमें से हर एक की, और जो वैक्सीन के साथ कह दिया है कि वैक्सीन करती है, ये सब हमको पता है कि ऐसा कुछ वजह नहीं है। खामखा वैक्सीन को बदनाम किया जाता है और ये सारे जो है वो एनवायरमेंट, जेनेटिक, एपिजेनेटिक, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज। तो सर्विलेंस में डिटेल्ड हिस्ट्री फ्रॉम द चिल्ड्रन केयर गिवर्स, बर्थ हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, पूरी माइलस्टोन्स उसके, हाइजीन, स्क्रीन टाइम, फैमिली उसकी जो है वो क्या है, वो है न्यूक्लियर है या ये कि ज्वाइंट फैमिली है, उसके भी असरात होते हैं। और हमारी क्लोज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग डॉक्टर विजिट है। और फिर उसके हिसाब से जो है उसके लैब टेस्ट जैसे जरूरत हो। क्योंकि एक हम जो नारा लगा रहे हैं, देखिए ये जो हम बेबी रेगुलर बेबी विजिट्स हैं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी और टर्शरी सब में होना चाहिए। क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर वाले, पाकिस्तान में तो कोई सिस्टम ही नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर में सेफ्ट्रियाक्सोन की ड्रिप लगाई जा रही होती है ना, ड्रिप पे ड्रिप, और जिंक तक नहीं होता वहाँ, आयरन तक नहीं होता। तो हमें ये सब जगह ये चीजें करनी है। हमें ग्रोथ मॉनिटरिंग, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, और अब तो ये है कि हम जो है 1 ईयर पे भी जो है एचडी की स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि काफी चीजें पकड़ी जाती हैं उस वक्त भी। और अभी एट प्रेजेंट हम सीडीसी का माइलस्टोन का जो ऐप है ट्रैकर, वो हम यूज कर रहे हैं, लोगों को भी बताते हैं। और सून वी आर गोइंग टू यूज शेमैक डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टूल। जब डॉक्टर शाजिया हमको इस पे ट्रेन कर देंगी तो वो हम स्टार्ट कर देंगे। और इसमें आप देखिए कुछ साइंस वगैरह हैं जो सेंसरी प्रॉब्लम्स और आइसोलेटेड, लेकिन इस पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेन सर्विलेंस में क्या चीज आती है कि डिटेल बर्थ हिस्ट्री के कहीं इसको एच आई हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफ्लोपैथी तो नहीं है, पोस्ट कर्निक टेरेस एनकेफ्लोपैथी। कितने ही बच्चे जो रेफर होके मेरे पास आते हैं एज ए ऑटिज्म, वो सेरेब्रल पेल्सी के होते हैं और उनकी मैनेजमेंट डिफरेंट है ना। तो ये कि साइनोस तो नहीं था, एवगार स्कोर क्या है, डॉक्टर्स चेक भी करते हैं तो बताते कुछ नहीं है, है ना। तो और फिर जो जरूरी टेस्ट, बाहर के मुल्कों में हियरिंग टेस्ट जो है वो एट बर्थ हो जाता है, दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ आप किसी से कहें तो मुश्किल हो जाती है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज हो रहा है कि नहीं, जंक फूड कितना है, ये सारे बिहेवियर के प्रॉब्लम्स करते हैं जंक फूड। वी आर सेइंग जंक फूड और स्टिल वी आर गिविंग जंक फूड है।
फिर प्रोसेस फूड, फिर लैब टेस्ट जरूरी डेफिशिएंसीज एक्सक्लूड करने के लिए। और इतने ही बच्चे जो बहुत सी जगहों से जो है करवा के आते हैं कि ऑटिज्म है, उनका कोई एक लैब टेस्ट नहीं होता। और जब हमसे लैब टेस्ट का कहते हैं तो कहते हैं ऑटिज्म का तो कोई टेस्ट नहीं होता। बेशक ऑटिज्म का टेस्ट नहीं होता, ऑटिज्म इज बाय एक्सक्लूजन। वी नीड टू एक्सक्लूड एनीमियाज, विटामिन डी डेफिशिएंसी, एंडोक्राइन प्रॉब्लम, B12, है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, EG, MRI, जब जैसे जरूरत हो उसकी। तो ये डॉक्टर शाजिया मकबूल से मैंने सीखा था और मैं अभी तक इसको यूज कर रही हूँ कि जब हम ये पूरी डिटेल सर्वेलेंस और स्क्रीनिंग करते हैं, देन वी क्लासिफाई एज GDD, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, या सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो डिटेल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, और लैब टेस्ट जिसकी ज़रूरत हो, क्योंकि मुझे इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि सिर्फ जब मैं डेफिशिएंसीज उनकी एक्सक्लूड करती हूँ और करेक्ट करती हूँ तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। स्क्रीन टाइम, जैसे हम सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, 0 to 2 years जीरो स्क्रीन है, और 2 to 7 years ओनली एन आवर अंडर सुपरविजन फॉर लर्निंग। हाँ, ये कि कुछ बच्चे जो है विजुअल लर्नर होते हैं, वो हमें देखना है, लेकिन ये नहीं कि जंक फूड भी दे रहे हैं और स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, तो जो लर्निंग एट द एज ऑफ 2 years 50% ऑफ ब्रेन बन जाता है और 3 years पे 90%। तो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। ये सारी बहुत डिटेल चीजें हैं, अगर कोई करना चाहेगा तो हम इस पे डिटेल भी करते हैं। तो टेक होम मैसेज क्या है कि इंक्लूजन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एट एवरी स्टेज। और हमको जो है ऑटिज्म लेबल करने से पहले, लेबलिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट। जो उसके प्रॉब्लम्स है उसको हम जितने जल्दी हम कोशिश करें कि उसको हम सॉल्व करने की उसमें लग जाएं, जो डेफिशिएंसीज है उसको देख के उसको करेक्ट करें, उसके बाद आगे चलें, है ना। तो इंक्लूसिव सोसाइटी हम सब लोग मिलके बनाएंगे, है ना। तो चिल्ड्रन और ब्लेसिंग नॉट बर्डन। जी मेरे बच्चों को अल्लाह रखे इन ताज़ा हवा के झोंकों ने, मैं खुश पेड़ खिजा का था, मुझे कैसा बरगोबार दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अज़रा। और बिल्कुल जो मेन पॉइंट्स हैं, लाइक अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर डायग्नोसिस विद अर्ली इंटरवेंशन। और तो इसके साथ हम नेक्स्ट स्पीकर पे अपने जाते हैं, जो कि हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैन। ही इज़ MD, चीफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री. सर इज़ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टेक्सास हॉस्पिटल, outpatient telemedicine psychiatrist, and from Technical University HSC. He's also a life member of COPAL. Sir, we are really glad to have you, and will request you to start off with your presentation regarding psychopharmacology in autism. Just a reminder for all. इनकी स्लाइड्स, जी अनस सेकेंड की स्लाइड्स जो है वो कर दे और मेरी जो है वो बंद करते हैं, है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील सो मच सॉरी कि हमने डॉक्टर मुस्तफा को बुलाया भी, लेकिन टाइम जो है हमारा क्योंकि शॉर्ट है, और वो वीडियो भी दिखाना चाह रहे थे जो कि हम नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर मुस्तफा, सो सॉरी, हम आपके साथ एक बड़ा सेशन फिर रखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप जितना टाइम आपको है आप चूज करें अच्छे तरीके से, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Start the slide. यस अनस। Meanwhile, I just want to say कि हमें KP से भी काफी लोगों ने ज्वाइन किया है. Dr. Babar Shah is also here. He's the president of KP chapter. Dr. Babar, assalamu alaikum and welcome. And I think presentation is about to start. Okay. Nadia, first slide, darling. Okay. I'm not going to talk about the supportive therapies. क्योंकि supportive therapies के लिए there are a lot of people around. So I'm going to start with the pharmacology. Okay. Pakistan में there is a slight confusion. Whether they're putting everything together, autism spectrum disorders, or
or autism may be non-verbal, verbal, everything is together, and which is kind of consistent with DSM. लेकिन ये है कि these are all different conditions. For example, tuberous sclerosis or Fragile leg syndrome is also included in autism. That's where there's so much confusion, which is genetic, which is not genetic. ठीक है? And also keep in mind that a full-blown autistic child has a lower IQ. Okay, and on autism spectrum, they are their IQ level is better. Either they are a little bit subnormal or they are even approaching normal IQ range. And the lower the IQ, the more the psychiatric problems are. Okay. जो आप डिफरेंटली एबल बच्चों की बात करते हैं ना, that applies to autism spectrum. And I'm kind of very hopeful क्योंकि autism spectrum वाले लोग बच्चे जो हैं वो they even go to college, they're a little bit eccentric, a little bit odd, लेकिन they kind of make, or at least capable of making progress. Okay. Okay, so go to the next slide. Sir, sorry to interrupt. Just if you can check, आपकी आवाज इको हो रही है काफी, तो might be आपका मोबाइल भी साथ ऑन है हाँ शायद. तो अगर आप मोबाइल से कोई एक डिवाइस अगर आप ऑफ कर दें प्लीज, ताकि इजी हो सबके लिए. हाँ, मैं एक डिवाइस ऑफ कर देता हूँ. जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. मेरे ख्याल से आप को अभी भी हो रही है. एक सेकंड, लेट मी get rid of the computer. Hopefully, it's not going to echo now. Yeah, perfect, sir. Thank you so much. So, when you start the pharmacology on autistic people, first of all, you have to make a diagnosis, okay? Because all kind of diagnoses are in existence in autistic people. For example, you can have a bipolar child with autism, anxiety disorder child with autism, compulsive behavior with autism, and the most important is aggression. Okay? Aggression is a very big challenge. और हमारे पास तो इसलिए भी big challenge हो गया है क्योंकि aggressive kids are now being put in jails. Okay, if you are aggressive, you are treated just like another person. They don't give any kind of consideration. If there is an injury, especially, then the child or the adult goes to the jail. Of course, attention deficit disorder is very prevalent in kids with autism and also in spectrum kids. Self-injurious behavior, as you know, is also pretty common. Stereotypic movements can be anything, hand movements, neck movements. It's more like an extension of tic disorders. So stereotypic movements are important, and because from another perspective, because there can be like an overlap between stereotypic movement disorders and epilepsy. And akathisia, restlessness, constant pacing around can also become a challenge. Prevalence is not that great for psychosis, but a lot of these autistic kids end up being psychotic. So all kind of DSM diagnosis applies to people with autism and the spectrum disorder. Okay, Nadia, can you go to the next slide? Epilepsy is 20% more prevalent in kids with autism. And, general pediatricians can play a vital role. Or आजकल तो epilepsy में, you put kids on anti-seizure medications and you kind of take them off after 2 years. And there's so many newer medications now for epilepsy, but I, being an older psychiatrist, I still like some of the older medications like Depakote, Tegretol, because they not only control the epilepsy, but they also control the aggressive behavior. So there is a place, and
Uh, one point I'm going to make, it is not always necessary to get an EEG, because with these kids, sometimes getting an EEG becomes a challenge. So you can even make a clinical diagnosis of tonic-clonic or uh, localized epileptiform disorders and treat them accordingly. Um, General pediatricians can play a vital role if they can manage the gastrointestinal conditions, because kids with autism and even with kids with spectrum, they come down with diarrhea, stomach upset, nausea, vomiting, and if that can be managed properly uh, in the longitudinal course, that is a real big help. Um, so basic pediatricians can play a vital role. And of course, sleep disorders are there, and anxiety is always there. Can you go to the next slide? Yeah. For anxiety symptoms, you don't need to go with very hardcore medicines. Antihistamines have some place. Benzodiazepines do have a place, but we have to be careful with the benzodiazepines. Number one, a lot of kids become dependent on benzodiazepines. And number two, so instead of making the kid better, they can make it worse. But if carefully used in a smaller dosages, benzodiazepines come very handy. And of course, we use a lot of SSRIs for anxiety management, Prozac, and escitalopram or Lexapro is on the top of the list. So with spectrum disorder, you know, not all kids need to be on medications, but for hardcore autism, almost all kids sooner or later end up taking medications. And the mean age for starting the medicine is actually as low as 8 years. And these are the people, or these are the kids, even when they become adults, they require ongoing pharmacology. That does not really apply to kids with autism spectrum. And what had happened over here, that disability is only granted now for autism diagnosis. It is no longer granted for autism spectrum. So you can go to the next slide. Okay, depression is a challenge, and FDA basically approves Prozac and Lexapro, but we use all kind of medications for the management of depression. We are using venlafaxine, we are using duloxetine, we are using Trintellix, and all the other medications. If one medicine doesn't work, then we go to the next medicine. And depression sometimes can create suicidal ideations, then you have to manage accordingly. Okay, you want to go to the next slide? Okay, this is the challenge I was telling you about. Uh, Aggression is not good for the families, aggression is not good for the siblings. So the better you manage the aggression, the better the outcome will be for the patient as well as for the rest of the family. And the most commonly used medications, I'm sure that Pakistan is also using the same medicines, Risperidone and Abilify. But again, now we have got the second generation, third generation of the older medications, and we are kind of using a lot of these medicines. Other medicines which are of value are medicines like clonidine, and older medications like gonosopine, and both of them are actually blood pressure medicines, but they are used for the management of anxiety, sleep, aggression quite a bit, along with other medications.
जी Anna, sorry, are you there? आप please sir की next slide करें. Yeah, there should be 3 or 4 more slides. Mhm. Might be any issue. Um, Yes, next. Yeah, attention deficit is a fairly common condition in both autistic disorders and spectrum disorders. But the results are not all that great. Almost all kids who have got pure attention deficit disorder, they respond much better to the stimulant medications as well as to the non-stimulant medications. But with kids with autism, the results are kind of 50%. But you have to keep this factor in mind. A lot of these kids cannot concentrate. They're all over the place. That's why they're using this new term. They're combining this term, autism, with attention deficit disorder. So that is called AUD, which is autism for the first part and attention deficit for the other part. Okay, we have got stimulant medications, but now there's almost like a very big industry for the non-stimulant medication. And the list is kind of growing for the non-stimulant medications, including Statera, which is very commonly used. Quilbri is very commonly used. And now they have got almost 8 to 10 different kind of non-stimulant medications. Historically, we had used the regular medications like Ritalin. Longer-acting form of Ritalin is Concerta. Another stimulant medication is Focalin. Adderall has been around for a long time, but Adderall has a tendency of being abused. Vyvanse is a newer medication, and it has got excellent results. This is one of my favorite medications. I tend to use Vyvanse because the tolerance does not develop that quickly. Patients can be stabilized on one dose and they remain stable for many years. Versus if you compare it with Adderall, the patient would ask for more and more dosages. The kid is not doing well or the adult is not doing well. Doctor, can you go up on the dosage? And there is always an risk for abuse potential. But stimulants do play a vital role in the management, especially if the kid has got attention deficit problems. Okay, you want to go to the next slide, Adil? Oh, this comes to the video. So I think we are not going to show the video, right? Are we going to show the video or not? Actually, it's Time permitting. about like 25 minutes. So, Okay. No, yeah. that's okay. That's okay. Maybe we'll leave it for another time. But make sure that you delete the video because, patient confidentiality is Okay. always an issue. Okay, let me go through some of the older medications, okay, which are still being used. I see them being used in Pakistan. Haldol, very old medication, Prolexin or flufenazine, very old medications. These medications, they carry a risk for tardive dyskinesia. So they are being used less and less over here. But since they are cheaper medicines, even for our poorer patients, we tend to still use some of the older medications. So these are two antipsychotic medications which are commonly used for psychosis and for the management of aggression. Anafranil is also a very old medication. I think the generic name is fluoxamine. Fluoxetine is Prozac, fluoxamine is anafranil. Anafranil is a fairly decent medication for the management of obsessive compulsive symptoms. But from a therapist point of view, you don't need to kind of control minor kind of obsessions because these kids, they require a routine. They like doing certain things on Mondays, they like doing certain things on Tuesdays, and this kind of applies to a lot of these kids, and they don't like any change. So if you can set them a routine, if they can move on with their life with or without medication, that is even better.
Luvox is also an older medication. It is in the SSRI family, but it's not used for depression. It is mainly used for obsessive compulsive disorder. So what is new going on? You know, for interest for OBGYN doctor, gynecologist amongst us, this is the medication which keeps on coming back. A lot of trials have failed. This is the oxytocin, which is used in gynecology. But for some reason, it tends to improve the pro-social behavior. And we are trying, so far, we are just controlling the symptoms of these patients. We are not doing anything much to improve the core symptoms. The core symptoms is social relationships and language. But there are quite a few of medicines in the pipeline, which hopefully are going to get FDA approval, and then we'll start using them to improve the social behavior and maybe to improve the language. So oxytocin, for some reason, it keeps on failing, but it keeps on coming back. That's why I did mention the oxytocin. Okay, TMS, transcranial magnetic stimulation, is an upcoming therapy. I'm an interventional psychiatrist myself, and I do a lot of like older treatments like ECT and VNS and those kind of things, ketamine. But FDA has approved TMS for teenagers, but the results so far are mixed. Results are not all that great, but we are hoping that things are going to get better. Okay, one small story I'm going to tell you, and then I'm going to stop. You know, I had a patient, he had such a bad obsessive compulsive disorder. He was on the spectrum basically, and that he used to take shower for like 3 years, 3 hours, 3 घंटे तक वो shower लेता था, and no matter what I tried, he didn't improve. So he was a Jewish patient, so he was wanting to go to Israel. So I called Israel and I got him accepted over there. Israel didn't do much. तो फिर मैंने उसको भेजा Baylor College of Medicine, Houston में. And you know, Baylor College of Medicine, Houston did such a wonderful thing. They put a device in his chest, and device has got coils which are 1/10 the size of a hair follicle. इतने पतले थे, and these follicles are placed around the basal ganglion area. Okay, for the last 3 years, this boy has been showering for no more than 15 minutes, and he's also working. So these technologies are going to come. I'm also hoping for technology to come for management of aggression, but for many psychiatric conditions, um, uh, technology is the final answer, I would say. But until then, we have to use the medications properly, monitor the side effects, use them in the least amount of dosages, and then kind of go from there. Okay, thank you very much. I hope I didn't take too much time, huh? No. Thank you so much, sir. It was an excellent presentation in the limited time given. और जैसे कि सर ने कहा है कि because the medications are there for co-occurring conditions, तो ये parents जो भी हैं, either please just take advice from the doctors before giving any medication. Don't administer any medication yourself. क्योंकि हर चीज़ के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो मेडिसिन देने से पहले वी नीड टू बी रियली केयरफुल. और जैसे कि को अकरिंग कंडीशंस के साथ हैं और सिम्टम्स जब ज़्यादा हो जाएं, ज़्यादा एग्रीवेट हों, एंग्जाइटी या वो तभी देनी चाहिए. जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का सर ने कहा कि अगर एक हद से बढ़ जाए तब उसकी है. खैर, इस पर इंशाल्लाह हम एंड में डिस्कस करेंगे. अब मैं दावत दूंगी हमारी नेक्स्ट स्पीकर को, डॉक्टर शगुफ्ता जबीन. She is a pediatrician, natural play therapy coach, sunrise expert, parent of an autistic child, RDI consultant, which is relationship development intervention. और इसी पे डॉक्टर शगुफ्ता आज एक इंट्रोडक्शन देंगी because it's really a big topic, autism, and she's an autism advocate. Over to you, Dr. Shagufta. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन. आप सबको मेरी प्रेजेंटेशन आप देख सक रहे हैं? जी बिल्कुल.
So, make it a slideshow. जी जी मैं कर ठीक. So thank you so much, Dr. Azra आपका to have me here और आज इस मौके पे to talk about relationship development intervention amongst the greats, Dr. Shazia Maqbool and Professor Manaz. I feel very honored because Dr. Shazia Maqbool के साथ एक personal history भी है. जब मेरे बेटे का diagnosis हुआ था तो she was the first one I reached out in Lahore. तो it is also very emotional for me right now कि यहाँ पे आज वो यहाँ मौजूद है मेरे साथ. तो एक छोटी सी कोशिश है प्रेजेंट करने की इंशाल्लाह. रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन इज फेयरली न्यू इन पाकिस्तान. आज से 2 साल पहले आई वाज द फर्स्ट कंसल्टेंट हियर और लोगों को इसके बारे में बहुत नहीं पता और मेरा ख्याल है कि इट इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर क्योंकि इट कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव. हम रूटीन में जो चीज़ें देख रहे होते हैं उससे ये डिफरेंट है. एंड आई होप कि इस छोटे थोड़े से टाइम में आई कैन डू जस्टिस के थोड़ा सा कुछ इफ आई कैन एक्सप्लेन अबाउट इट. RDI basically stands for Relationship Development Intervention और ये एक प्रोग्राम है which was founded by Dr. Stephen Gutstein and Rachel Sheedy. They run an institute called RDI Connect in Texas. They founded this program जब उन्होंने बहुत सारे बच्चों को स्टडी किया from their infancy through their developmental years और आगे even up into their adolescent and adulthood. और इन सारी जो एजेस में सबसे ज़्यादा जो फोकस था दैट वाज इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑफ लाइफ. ब्रेन डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए कि कौन से इन्फेंट्स हैं हु आर बॉर्न बिल्कुल जैसे सारे इन्फेंट्स दे आर एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ और ऐसे क्या डिफरेंट होता है जो कि लेटर ऑन ऑटिज्म में डेवलप होता है या द वे दे बिहेव व्हेन दे आर डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म. तो ये सारी की सारी रिसर्च जो है ये उसकी बेस पे उन्होंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है. एंड व्हाट इज़ एट द हार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ द गाइडेड पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप. अब गाइडेड पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप जो है इसका मैं शॉर्ट फॉर्म GPR यूज़ करूँगी कि ये वो रिलेशनशिप है जो कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में होता है. इट इज़ अ बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप यानी कि ये एक वन वे ट्रैफिक नहीं है. पेरेंट्स और बच्चे दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं और यूजुअली बच्चा जब अपने इनिशियल स्टेबिलिटी मंथ्स में से निकलता है जो कि पहले 3 महीने होते हैं एट द टाइम जब बच्चा अपनी नेक होल्डिंग शुरू करता है, सोशल स्माइल आ चुकी होती है और बच्चा अपनी इन्वायरमेंट में थोड़ा सा अवेयर होना शुरू होता है, अपनी मदर को देखना शुरू करता है. तो इस टाइम पे 4 to 6 months ऑफ एज इस पे ये जो है बेसिकली इट काइंड ऑफ टेक्स ऑफ. और पेरेंट्स को पता है ऐसे चलता है कि जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा थोड़े से सोशली इंगेज होना शुरू हो जाते हैं, स्माइल ज़्यादा करते हैं, कोइंग है, बैबलिंग है. और जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कोइंग और बैबलिंग करते हैं पेरेंट्स भी उनके साथ इक्वली इन्वॉल्व होते हैं और उनको रिस्पॉन्ड करते हैं. तो दिस इज़ लाइक अ बैक एंड फोर्थ एक इंटरेक्शन जो है वो पेरेंट में और इन्फेंट के दरमियान जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है. पेरेंट का रोल होता है एज अ गाइड उस बच्चे की जो जो वो चीज़ें देख रहा होता है उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चे के साथ और करना, जिसको कि बच्चा जब देखता है सुनता है तो बच्चा भी और ज़्यादा चीज़ें करना शुरू होता है, अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो हैं उनको अचीव करना शुरू होता है. तो ये एक नॉर्मल सिलसिला है जो कि डेवलप होता है. दोनों जो है वो एक दूसरे के फीडबैक के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं क्योंकि अगर बच्चा जो है वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं करता तो पेरेंट ऑब्वियसली उतनी एफर्ट नहीं डालता और अगर पेरेंट बच्चे की कूइंग और बैबलिंग को रिस्पॉन्ड नहीं करता तो बच्चा भी उस तरह से ग्रो नहीं करता. तो ये जो बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप है ये बेसिकली ऑटिस्टिक बच्चों में इट डज नॉट किक ऑफ. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रोग्राम. यहाँ पे ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एक मदर और एक इन्फेंट को दिखाया हुआ है कि पेरेंट्स जो है वो ग्रोथ प्रमोटिंग होते हैं और इन्फेंट्स जो होते हैं वो ग्रोथ सीकिंग होते हैं और ये फेज जो है 6 months के बाद जो है वो शुरू हो जाता है. यहाँ पे एक और पिक्चर है जिसमें मैं आई कैन शो यू कि जो बर्थ के बाद स्टेबिलिटी मेंटेनिंग फेज है जिसमें बच्चे एक अपने 2 months के बाद 3 months के बाद जब वो सोशली अवेयर होना शुरू होते हैं, 6 months पे जब वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा बैठना शुरू करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा इंगेज होना शुरू होते हैं, हम जो उनके साथ छोटी छोटी गेम्स खेलते हैं उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं. जैसे हम सब ने बचपन में या
बचपन में तो नहीं, लेकिन हम जैसे सब मेजोरिटी ऑफ अस पेरेंट्स हियर, तो हमने अपने बच्चों के साथ एक पीकाबू की गेम से हम शुरू करते हैं, और हम अपने चेहरे को हाथों से छुपा लेते हैं, और थोड़ी देर के बाद जब हम हाथ हटाते हैं तो बच्चा जो एकदम से परेशान हो जाता है वो खुश हो जाता है कि ओ माय माय पेरेंट इज बैक। इनिशियली उसको ये समझ नहीं आती बात कि ये पेरेंट जो था ये इधर ही था, सिर्फ उसका चेहरा छुपा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चे को ये चीज़ समझ आनी शुरू हो जाती है, बच्चा इस चीज़ को इंजॉय करता है, और फिर हम भी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं। तब हम सिर्फ अपने हाथों तक नहीं रहते, कभी हम मुंह पे कपड़ा डाल लेते हैं, कभी हम किसी सोफे के पीछे छुप जाते हैं, किसी दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। तो एज मच एज कि ये इंतहाई सुनने में इनसिग्निफिकेंट सी बात है, लेकिन उसकी सोशल डेवलपमेंट के अंदर ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, जहाँ पे बच्चा ये देख सीख रहा होता है कि एक ही चीज़ है, बट इट इज़ डन इन मेनी डिफरेंट वेज। तो ये आप यूं समझे कि जब बच्चा उस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करता है, तो ये एक बेसिस होनी शुरू हो जाती है एक सेल्फ रेगुलेशन की, कि अच्छा जब पेरेंट नहीं है और फिर जब पेरेंट वापस आया है, उस दौरान बच्चा परेशान नहीं हुआ, उसने अपने इमोशंस को मैनेज किया। तो ये वेरी अर्ली ऑन ये चीज़ बहुत ही सटल तरीके से जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो फॉर वट एवर रीजन्स, जो भी बच्चा, ऑटिज्म की कॉजेज जैसे उसकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो बच्चा लेटर ऑटिस्टिक हो जाता है, पहले साल में तो आप इतना फर्क नहीं बता सकते, उसके बाद जब आपको साइंस नजर आने शुरू होते हैं, तो उसमें होता यही है कि ये जो ग्रोथ सीकिंग का टाइम पीरियड है, दिस डज नॉट किक ऑफ इन किड्स हु लेटर ऑन आर डायग्नोज्ड टू बी ऑटिस्टिक। अब ये चूंकि एक डिफरेंट ब्रेन है ऑटिस्टिक बच्चों का, उसकी वजह से क्या होता है कि देयर इज लैक ऑफ न्यूरल कनेक्टिविटी। आपस में जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं जो कि टिपिकल डेवलपमेंट में होते हैं, वो कनेक्शंस जो हैं वो उस तरह से डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से देयर इज लॉस ऑफ गाइडेड पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप, लीडिंग टू डायनामिक इंटेलिजेंस की एब्सेंस। हम बहुत दफ़ा बात करते हैं अबाउट इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस बेसिकली दो तरह की होती है, देयर इज स्टैटिक इंटेलिजेंस एंड देयर इज डायनामिक इंटेलिजेंस। स्टैटिक इंटेलिजेंस वो होती है जो हर जगह या हर हमेशा सेव रहती है, जैसे लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, कलर्स हैं, शेप्स हैं, किसी काम करने के डिफरेंट स्टेप्स हैं, किसी जगह जाने का एक रास्ता है, और इसकी बड़ी अपनी एक वैल्यू है। ये फाउंडेशन है हमारे नॉलेज की। तो स्टैटिक एक दफा जब हम सीख लेते हैं तो वो सेम रहता है, लेकिन डायनामिक वो है कि इस सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे अंदर होती है उसको हमने वक्त के हिसाब से इस्तेमाल कैसे करना है, दैट इज बेसिकली डायनामिक थिंकिंग, डायनामिक इंटेलिजेंस। जैसे मैं रोज अपने क्लिनिक एक ही रास्ते से जाती हूँ, आज फर्ज करें वहां कोई प्रोटेस्ट हो गया या बहुत बारिश हो गई, रास्ता बंद हो गया, तो अब मेरा एकदम से दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर देगा। उससे पहले मैं एक ऑटो मोड में चल रही थी, लेकिन अब मेरा दिमाग काम करना शुरू हो गया कि अच्छा मुझे दो तीन रास्ते हैं, उसमें से कौन सा रास्ता चूज करना है, किस पे ज्यादा देर लगेगी, किस पे ज्यादा रश मिलेगा, मुझे कहाँ से गुजरना है, कोई अगर मेन सड़क बंद है कौन सी गली लेनी है। ये वो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है या डायनामिक थिंकिंग है, जो कि उस स्टैटिक नॉलेज को यूज करके मैं अपना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। एकदम जो सिचुएशन चेंज हो गई है उसमें मैं अपने आप को आई विल फंक्शन, ताकि मैं उस चेंज को प्रॉपरली हैंडल कर सकूं। सो दैट इज बेसिकली डायनामिक इंटेलिजेंस, डायनामिक थिंकिंग। तो वो जो डायनामिक इंटेलिजेंस है वो डेवलप नहीं होती। इसी वजह से जैसे ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में बहुत कहा जाता है कि दे लव रूटीन्स, दे वांट प्रिडिक्टेबिलिटी। दे वांट प्रिडिक्टेबिलिटी बिकॉज दे फंक्शन इन अ स्टैटिक इन्वायरमेंट। जहाँ इन्वायरमेंट डायनामिक होता है वहां पे वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दे पैनिक, या वो मेल्टडाउन में चले जाते हैं, या टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डायनामिक थिंकिंग एंड डेवलपमेंट इनटू कोर डेफिसिट्स। अब जो कोर डेफिसिट्स ऑफ ऑटिज्म हैं, बेसिकली इसमें ये 5 मैंने एक तरह से इकट्ठे करके लिख दिए हैं। देर आर लाइक ग्रेट डील ऑफ डिटेल टू इट, लेकिन फॉर आर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कोर डेफिसिट्स हैं इसमें सबसे मेजर जो है दैट इज रेगुलेशन, लैक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एज वेल एज को रेगुलेशन। अपने इमोशंस को, अपने हालात को, अपने एक्शंस को मैनेज करना इन अ नॉवल सिचुएशन, सेल्फ रेगुलेशन, और अपने एक्शंस को माहौल में कैसे एडजस्ट करना है, दैट इज को रेगुलेशन। कि मैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मेरा क्या रोल है, अगर इसका ये एक्शन है तो मैंने क्या आगे से करना है। सो दैट इज को रेगुलेशन। इन दोनों की जो है वो देर इज लैक ऑफ बोथ ऑफ दीज। देन तीसरा है जॉइंट अटेंशन, कि इन्वायरमेंट को जॉइंटली एक्सपीरियंस करना, इसका लैक है। चौथा है कम्युनिकेशन,
ऑलमोस्ट ऑल्दो के ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो लॉट ऑफ देम कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे बल्कि मेजॉरिटी जो बच्चे हमारे पास आते हैं स्पीच के प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, स्पीच डिलेज के साथ आते हैं, या बिल्कुल स्पीच नहीं होती, इन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। तो स्पीच से ज़्यादा कम्युनिकेशन का डेफिसिट होता है, कि स्पीच हो भी तो भी बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते, एक बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन जो है वो नहीं कर सकते, सो उसका लैक होता है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल एजेंसी, कि मैं खुद कौन हूँ, मेरी अपनी क्या चॉइसेस हैं, मेरी अपनी पर्सनालिटी क्या है, मेरा अपना हु एम आई, सो द लैक ऑफ पर्सनल एजेंसी। सो ये जो हैं दीज आर द कोर डेफिसिट्स ऑफ ऑटिज्म, जो कि लैक ऑफ न्यूरल कनेक्टिविटी की वजह से एंड लैक ऑफ या लॉस ऑफ गाइडेड पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप, उसकी वजह से मंजर आम पे आते हैं। और अगर आप अभी गौर करें आपकी प्रैक्टिस में, जितने भी पेरेंट्स आपके पास अपने बच्चे को लेके आते हैं, चाहे वो डायग्नोसिस के टाइम पे लेके आए या बाद में लेके आए, एक प्रोग्रेस रिव्यू के लिए लेके आए, इनमें से कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसा सवाल हर पेरेंट का होगा कि बच्चा अपने आप को इमोशनली रेगुलेट नहीं कर सकता, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बच्चा जो है वो मिलके किसी एक सिचुएशन में अपने आप को बाकी सबके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। सो यू वुड ऑल वेरी वेल रिलेट टू दीज कोर डेफिसिट्स। अब इस सारी सिचुएशन में जब बच्चे के अंदर ये कोर डेफिसिट्स आ जाते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि दे बिकम मोर डायरेक्टिव, वो ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं, उनको बताना शुरू कर देते हैं, ये करो वो करो, यहाँ ना बैठो, इस तरह ना करो, so they kind of like resort to a lot of instructional kind of conversation। दूसरी चीज, टेक मेजॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीनिंग कि अगर वो उनके साथ बैठ के कुछ खेल भी रहे हैं तो उसमें उनका रोल ज्यादा होता है। अगर वो ब्लॉक्स भी खेल रहे हैं तो उनकी मर्जी होगी कि बच्चा मेरी ही तरह ब्लॉक्स खेले जैसे मैं कह रहा हूँ, इसी तरह टावर बनाए, इसी तरह जो है वो टावर को तोड़े, इसी तरह लाइंस बनाए। मतलब उनको, अगर वो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा या बच्चा बता नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद ही से इस चीज को ज्यूम कर लेते हैं कि ये बच्चा कर भी नहीं सकता, सो दे ट्राई टू हेल्प। आई मीन दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डिमीनिंग या उनको लुक डाउन अपॉन, बल्कि एक प्लेस ऑफ कंसर्न के साथ कि मैं बता दूं इसको कि कैसे करना है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बच्चे, पेरेंट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा खुद लेना शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज के फोकस मोर ऑन स्टैटिक लर्निंग, यानी हम बच्चों को ऐसी चीजें सिखाते हैं, हमारा फोकस आमतौर पे भी बच्चों का होता है लेकिन इनमें ज्यादा ही एकेडमिक्स हमारा बहुत बड़ा फोकस बन जाता है, कि हम बच्चे को नंबर सिखा दें, उनको लेटर सिखा दें, उनको कलर सिखा दें, उसके ऊपर सारी एफर्ट होती है। डायनामिक लर्निंग के ऊपर, या ये कि बच्चे को अपने साथ इंगेज करके उसके साथ चीजें करने के बजाय उसको चीजें करवाना, बेसिकली ये एक वन वे ट्रैफिक जो है वो बनना शुरू हो जाती है। पुटिंग आउट द फायर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के ऊपर जो टोल आता है, कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, क्योंकि पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि उनका बच्चा जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, एंड मोर ओवर कि मैं अपने बच्चे को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। उसकी वजह से उनको होता है कि आई शुड जस्ट नॉट रॉक द बोट, हालात एक ही जैसे रहें, जो है बस ये मसला हल हो जाए, आज का दिन गुजर जाए, बस ये मोमेंट जो है वो गुजर जाए। सो दे आर काइंड ऑफ पुटिंग फायर्स। इन सारी सिचुएशंस में एक और जो बहुत अहम चीज़ होती है वो ये है कि बच्चे के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो डालना शुरू कर देते हैं, कि एक तो बच्चा ऑलरेडी ऑटिस्टिक है, ही इज़ नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि मेरी दुनिया में जो आगे पीछे इतना क्योस मचा हुआ है, मैं उसको कैसे समझूं। ऑन दैट, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि बच्चे ने ये करना है, बच्चे ने यहाँ जाना है, बच्चे ने इस तरह उठना है, बच्चे ने वहाँ बैठना है, बच्चे ये नहीं करना। सो बच्चे के ऊपर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, कि वो बच्चा ना खुद से समझ पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के ऊपर आ रही है, उसका प्रेशर आ रहा है। वो उन सारी चीज़ों की वजह से नतीजा क्या होता है कि बच्चा मज़ीद डिसंगेज होना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी ऑटिज्म की वजह से वो आइसोलेट हो रहा है, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, उसको लगता है कि उसको कोई समझ नहीं रहा। लेकिन इन सारी चीज़ों के नतीजे में, पेरेंट्स की एंजाइटी के नतीजे में, बच्चा और ज़्यादा डिसंगेज होता जाता है और ज़्यादा आइसोलेट होता जाता है, क्योंकि वो फिर एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाना शुरू हो जाता है जहाँ पे हर चीज़ उसके हिसाब से हो, प्रिडिक्टेबल हो, रिपेटिटिव हो, ताकि वो अपने एक तरह से इन सारे हालात के साथ कोप कर सके।
ये एक फंक्शनल एमआरआई है ऑफ टू ब्रेन्स, इसमें एक जो है वो टिपिकली डेवलपिंग ब्रेन है और एक ऑटिस्टिक ब्रेन है। सो यू कुड सी इसमें कि जो ऑटिस्टिक ब्रेन है, वेरी फ्यू एरियाज ऑफ द ऑटिस्टिक ब्रेन जो है वो इस तरह से दे हैव लाइटन अप आफ्टर उन्होंने कोई भी बच्चे को एक एंगेजमेंट कोई ऑफर की है या कोई किसी एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व किया है। सो द टिपिकल ब्रेन इज मच मोर स्टिमुलेटेड, लेकिन जो ऑटिस्टिक ब्रेन है वो उस तरह से स्टिमुलेटेड नहीं है। और इसकी वजह यही है क्योंकि ये जो ब्रेन है इसकी वायरिंग इट्स डिफरेंट दैन द टिपिकली डेवलपिंग ब्रेन। अब आरडीआई ने क्या करना है कि आरडीआई जो है वो इस गाइडेड पार्टिसिपेशन रिलेशनशिप के ऊपर दोबारा से काम करना शुरू करता है, इस तरह से कि जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज, आई एम सो सॉरी। So, because I also have an autistic son, so he just came to me for something. So, what RDI would do is कि ये जो lost guided relationship है इसके ऊपर काम करते हैं। It is an authentic experience based learning जिसमें parents और बच्चे दोनों जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स को हम सिखाते हैं हाउ टू वर्क विद देयर चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड कि डायनामिक इंटेलिजेंस क्या है और डायनामिक थिंकिंग के ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। उसके अलावा हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हैं और मेंटल चैलेंजेस क्रिएट करते हैं बच्चे के लिए जिसमें कि बच्चा एक सेफ एनवायरनमेंट में नॉवेल्टी को फेस करता है, ना सिर्फ नॉवेल्टी को फेस करता है बल्कि एक ऐसे केयर गिवर या एक ऐसे पेरेंट के साथ जो है वो नई चीजें एक्सप्लोर करता है जिसके साथ जो मतलब अपने एक काम प्रेजेंस के साथ और अपने एक को रेगुलेटरी एफर्ट के साथ उस बच्चे को उस चैलेंज में से उसके साथ गुजरता है। और जब वो उस चैलेंज में से उसके साथ गुजरता है तो दैट इज एन एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग फॉर द चाइल्ड। और उसके लिए फिर बच्चे के लिए आसानी हो जाती है, जब वो एक दफा उस चीज में से गुजरता है तो उसको एहसास होता है कि अच्छा ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है, और अगर मेरे लिए मुश्किल हुई भी तो आई हैव समवन हु हैज माई बैक। तो इस तरह से एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस बेस पे हम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी गाइड दें ताकि वो उनके साथ काम करें। तीसरी चीज ये है कि स्टेप अहेड मॉडल इसका एक और बैकबोन है जो कि यूज होती है इस तरह के हम एक चीज जैसे सीखते हैं और उसके बाद वी कीप बिल्डिंग ऑन लर्निंग इन दैट सेम एक्टिविटी। उसी में एक जो है आप अचीव करके, अब एक चीज फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चे को छोटा बच्चा और मैं उसके साथ उसको मैं कोई बॉल खेलना सिखा रही हूँ और उसके साथ या उसके साथ मैं ब्लॉक्स बना रही हूँ और मैं ब्लॉक्स एक तरीके से उसको सिखा रही हूँ, लेकिन जब वो ब्लॉक्स को यूज करना सीख जाएगा तो मैं उसके अंदर उसको बिल्ड करूंगी, मैं उसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स ले आऊंगी और उन मॉडल्स में मैं उसके साथ रहूंगी कि जहां वो घबराए जहां वो परेशान हो वहां पे मैं हूँ उसको हेल्प करने के लिए। तो बेसिकली सारा जो इसकी एक टीचिंग है या इसका जो काम है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रिजाइड करता है कि जो पेरेंट है उसका रोल है एज अ गाइड एक बच्चे की लाइफ में जो कि एक अप्रेंटिस है। तो जिस तरह जब हम कोई नई चीज सीखने जाते हैं और हमारा कोई उस्ताद होता है तो वो हमारे साथ मौजूद होता है लेकिन वो हमारे लिए सब कुछ नहीं करता, वो कहता है कि करो, अगर कोई मसला हुआ मैं हूं। और जहाँ कहीं मसला आता है वो गाइड हमें साथ मिलता है, हमें सिखाता है, हमें साथ बताता है और फिर एक तरह से ये एक बैक एंड फोर्थ चीज चलती रहती है जिसमें जो गाइड है वो सारा या उस्ताद सारा जो है लाइमलाइट नहीं लेता, लाइमलाइट उस बच्चे की ही होती है लेकिन उस्ताद उसके साथ रोल प्ले करता है कि वो उसके साथ मिल के उस प्रोसेस में से उसको गुजारे। रेगुलेशन और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज आर एट इट्स कोर्स, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम काम करते हैं दैट इज रेगुलेशन, पेरेंट्स की रेगुलेशन और बच्चे की रेगुलेशन। क्योंकि बच्चे के साथ जो पेरेंट को रेगुलेट नहीं कर सकता, बच्चा उस रेगुलेशन को इंटरनलाइज करके सेल्फ रेगुलेट नहीं करता। तो इस वजह से जो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है और जो सबसे पहली चीज है वो है पेरेंट की रेगुलेशन के ऊपर काम करना, विच इज एट द कोर ऑफ आरडीआई।
और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, इसके लिए तो हमें एक अलग सेशन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग टू द चाइल्ड। कि हम नॉर्मली जिस तरह बच्चों से सवाल जवाब पूछ रहे होते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू डू, देयर आर ऑल क्वेश्चंस। जबकि अगर हम बच्चों को आपस में कम्युनिकेट करते हुए देखें तो वो एक दूसरे से कभी भी सवाल पूछ के बात नहीं करते। वो हमेशा ऐसे बात करते हैं कि पता है कल मैं वहां गया था, वहां ये हुआ था, अच्छा मुझे तो ये चीज अच्छी लगती है, आज ये खेलते हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। वो कभी भी एक इम्पेरेटिव से या क्वेश्चन से बात शुरू नहीं करते। ये चीज हम स्पीच करते हुए भी और कम्युनिकेशन सिखाते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि उनसे बात करने के लिए उनसे सवाल पूछना जरूरी नहीं है, अपना ख्याल जाहिर करके भी बात शुरू की जा सकती है। तो गेटिंग बैक टू रेगुलेशन, ये थोड़ा सा मैंने इसमें लिखी थी, हालांकि आई ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, कि रेगुलेशन इज द एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल टू मैनेज देयर इमोशनल लेवल्स, bodily inputs and adapt themselves in an environment। इन सारी चेंजेस में अपने आप को environment के हिसाब से अडेप्ट करना इज रेगुलेशन। इसमें ब्रेकडाउन्स भी होते हैं, यानी कि जब किसी नई जगह या किसी नए सिचुएशन में हम आते हैं तो हम एकदम से परेशान होते हैं, डगमगाते हैं, दैट इज अ ब्रेकडाउन। लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ केयर गिवर और अ फ्रेंड और अ पेरेंट, जो इनिशियल टाइम्स में हमें हेल्प करता है टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ को रेगुलेशन, वो जो है दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ इट। सो इट गोज थ्रू प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन एंड देन रिपेयर। और ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल सबसे ज्यादा सीखता है। रेगुलेशन हम अचीव करते हैं, देर इज अ वे ऑफ अचीविंग रेगुलेशन। हम रेगुलेटरी पैटर्न्स यूज करते हैं, ये डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन इन पैटर्न्स की खूबी ये होती है कि दोनों, जो गाइड है और जो बच्चा है, इन दोनों के रोल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बंदा जो है वो काम कर रहा है और बच्चा जो है उसकी शमूलियत बिल्कुल ऐसी है कि जैसे फॉर द सेक ऑफ इट। नो, द चाइल्ड हैज टू हैव एन ऑथेंटिक रोल इन एनी गिवन एंगेजमेंट। फिर उस रोल को जब वो समझ जाता है तो उसमें हम वेरिएशंस ऐड करते रहते हैं। तो इट इज लाइक, जैसे पीकाबू की स्टोरी मैंने शुरू में बताई थी, कि वो सेम प्रोसेस है कि पेरेंट जो है वो छुप रहे हैं और सामने आ रहे हैं, लेकिन वो कितने डिफरेंट तरीकों से होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चीज़ों में नॉवेल्टी होती है। तो ये जो चीज़, जब हम इन पैटर्न्स को फॉलो करते हुए रेगुलेशन पे काम करते हैं तो वी मूव फ्रॉम डिसरेगुलेशन टू रिपेयर। तो कंसल्टेंट का रोल ये होता है कि उसने पेरेंट्स को कोच करना होता है, पेरेंट्स को समझाना होता है, सिखाना होता है, उनको एक तरह से ये बताना होता है कि जो जिंदगी है वो एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक प्रोसेस है। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही आप दुनिया को प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो इसलिए आपने उसके डायनामिक थिंकिंग के ऊपर काम करना है और कैसे करना है। दूसरा, जो भी इंटरेक्शंस हम पेरेंट्स के साथ मिलके बनाते हैं बच्चे के लिए, वो सारी एम्बेडेड होती हैं उसकी होम एनवायरनमेंट में। होम एनवायरनमेंट से हम शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हम दूसरी फैमिलीज में, बाहर स्कूल्स में, और फिर वहां पे जनरलाइज करते हैं। RDA इज रिलेशनशिप डेवलपमेंट असेसमेंट, ये भी इसका एक इंटेग्रल पार्ट है जो कि पेरेंट और बच्चे का होता है, और इसमें मतलब कंसल्टेंट मौजूद नहीं होता। और इसमें व्हाट वी सी इज के बच्चा, हाउ इज द चाइल्ड बीइंग गाइडेड बाय द पेरेंट, उसकी बेस के ऊपर हम ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बच्चे के डिफाइन करते हैं और पेरेंट्स के लिए गोल सेट करते हैं। और इसका फायदा ये है कि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है कि जिसमें ऐसा नहीं होता कि एक दफा आपने पेरेंट को सिखाया और उसके बाद आप चले गए। ये एक ऑनगोइंग ट्रेनिंग है पेरेंट के लिए, क्योंकि इस प्रोग्राम पे फैमिलीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। और उसका फायदा होता है कि हर महीने में हम 3 दफा मिलते हैं, और उनको असाइनमेंट्स भेजते हैं हर हफ्ते, ताकि उनका एक अपनी जो ग्रोथ है और लर्निंग है वो भी कंटिन्यू रहे और बच्चे के साथ काम भी होता रहे। पेरेंट का रोल Sorry, ये है। Dr. Shagufta. I'm जी जी, so आई एम जस्ट sorry to एंडिंग। interrupt. जी जी, thank जी, you so much. Sorry. तो पेरेंट्स जो है वो अपना माइंडसेट रिफ्रेम करते हैं फ्रॉम क्राइसिस टू कामनेस। वो सीखते हैं हाउ टू स्लो डाउन, अपने बच्चे को एनवायरनमेंट ऐसा कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं विच इज सेफ येट चैलेंजिंग, एंड दे लर्न टू बी गाइड्स फॉर देयर चिल्ड्रन। These are the differences between RDI and behavioral approaches, that it is parent-led and not expert-led, और इसमें parents की ongoing training होती है. It works on the core deficits rather than the symptoms, which is the behavior. There is mindful guiding. There is no directive learning here. This is growth seeking and challenge seeking, whereas behavioral approaches are compliance seeking. तो पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि अपने रोल को आइडेंटिफाई करें कि दे आर द गाइड्स फॉर देयर चिल्ड्रन, दे आर नॉट द थेरेपिस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Shagufta. It was a wonderful presentation. और साथ साथ हम कमेंट्स में भी यही हमें मिल रहा है कि excellent presentation by you. और आप
के साथ हमने सनराइज प्रोग्राम भी किया हुआ है, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। तो पेरेंट्स उसको भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर पैनलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा महनाज, जो कि उसको मॉडरेट भी करेंगी हमारे पैनल डिस्कशन को। शी इज पीडियाट्रिशियन, मेडिकल एजुकेशनिस्ट एंड कोम्पल चेयरपर्सन। But I would request क्योंकि Dr. Shazia Maqbool has to leave early for her commitment, so I would request कि हम अगर Dr. Shazia का opinion ले सकें। तो over to you, Dr. Shazia. Thank you so much. Thank you very much, Nadia, and thanks once again, Dr. Azra and Dr. Aisha Mehnaz for inviting me. Quickly, very good presentations, and Dr. Azra, मैं बस 2 मिनट लूंगी इसमें। डॉक्टर अजरा ने मेटाबॉलिक लैब्स की बात की, वो उसकी लैब टेस्ट की बात की, लेकिन उन लैब्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे मिनरल्स ना देखे जाए, सिर्फ जो उन्होंने बात की उसी पे रहें, जैसे विटामिन B12, विटामिन डी वगैरह। एक्सपेंसिव टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, एज एंड व्हेन नीडेड EEG और MRI की जरूरत है, बट उन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया और बहुत अच्छा किया। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने जो डिटेल बताया, दैट वाज आल्सो एक्सीलेंट। My only concern was that, yes, it is very much an autism spectrum and it has to be treated like that. There's no core autism anymore, according to DSM-5 and 5 revised version. So हमें वो autism spectrum ही देखना है, लेकिन what they have added on is 1, 2, 3 level of severity according to the level of functionality or help needed by children. Otherwise, it is very much a spectrum. और उन्होंने दवाइयों की काफी डिटेल बात की, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। And yes, odd ADHD is becoming more and more common. Genetic factor is there, and that genetic factor is still to be explored. बिकॉज हमें जिन जिन चीजों का पता है, फ्रेजाइल एक्स उन्होंने बात की, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की बात की, वो ऑब्वियसली हमें ऑलरेडी मालूम है और वो जीन्स का भी हमें मालूम है, बट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। हम UCL लंदन के साथ कोलैबोरेशन में हैं, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज, जो कि इस पे बहुत काम कर रहे हैं इस वक्त भी। Dr. Shugufta, I didn't thank you very much for appreciating, and also I hope I was able to help you and your son. Very good presentation, by the way, because behavior therapy ke saath saath anything which can work is excellent. I would never go for medicines. ये जो इतने भी parents यहाँ पर हैं, उनको मेरा एक बहुत क्लियर पैगाम है, जैसे नादिया ने कहा कि बगैर डॉक्टर के सुपरविजन के प्लीज कोई दवाई नहीं शुरू करें। ऑल्टरनेट थेरेपीज में बिहेवियर थेरेपीज, वो थेरेपीज जो गाइडलाइंस में हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड आई एम श्योर जो डॉक्टर शोफ्ता ने बात की RDIs की और पेरेंट्स एज गाइड्स की एंड नॉट थेरेपिस्ट, दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया, और उसी को हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो भी बिहेवियर थेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं, ये मैं आपको जरूर डॉक्टर गुफ्ता क्लियर करना चाहूंगी कि बिहेवियर थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, सेंसरी थेरेपिस्ट है, एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सब भी फैमिली सेंटर्ड होते जा रहे हैं। इट्स नॉट चाइल्ड गाइडेड एनी मोर। लेकिन वो पॉइंट आपका बहुत वैलिड है कि एक्सपेक्टिंग मोर एंड गिविंग लेस, वो गिविंग लेस तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टिंग मोर जरूर है। सो कंप्लायंस वुड मैटर। आई थिंक विद दैट मैंने एक क्वेश्चन फोलेनिक एसिड पे दिया, अभी हमने ऑटिज्म सेमिनार किया था और फोलेनिक एसिड पे एक और क्वेश्चन मैं चैट में देख रही थी फॉर मी स्पेसिफिकली। तो देखिए, जो भी चीज रिसर्च में है, यही जवाब मैंने तब भी दिया था, उसको बराए मेहरबानी अभी रिसर्च का हिस्सा तो रहने दें। डोज भी सब कुछ चैट GPT पे लिखा है, सब कुछ लिखा है, वो देते क्यों हैं? अगर आपने 2 mg पर kg के हिसाब से अप टू 50 mg तक अपने बच्चे को देना शुरू कर दिया और फोलेट मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम ही नहीं था, या उसको इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था कि जो तो फिर आप टॉक्सिसिटी की तरफ जाएंगे। यू डोंट वांट टू ओवरडू थिंग्स।
और ये टेस्ट फिलहाल बहुत महंगा है कि हम उसको देखें। अगर आप बहुत कीन पेरेंट हैं and you want to be part of it, so do write to different places where this research is being done and become part of that research trial. Probably that will be the best way to try that on your child, which will be under supervision as well. I think I won't take much of time because likes of Professor Aisha Mehnaz and others are waiting as a panelist. I had to go and I had promised Dr. Azra that I'll join, but I'll have to leave by 6. So thank you very much for having me. It was an excellent discussion, and I must congratulate Autism Without Borders, COMPAL, and all the others who had joined forum here. Of course, PPA is my very own. So thank you very much once again. Thanks a lot. Thanks a lot, Thank you Dr. so much, Shazia. Dr. Shazia. Over Yes. to you, Dr. Aisha. Thank you so much, Dr. Shazia. It was lovely hearing from you. Jazakallah khair. I think there are My a number of pleasure. My pleasure. questions being asked in the chat box. So Can we I'll ask go to questions? So वो सब panelist answer कर दे. I write all the questions. that is what I'm going. That is exactly what I'm going to request, Kiran. The questions that have been asked in the chat room, can you just take it one by one before Yes, I sure. give my comment? Sure. The first question is जो कि ग्रुप में पूछा गया था, that is कि जो कुछ behaviors ऐसे हैं, that is like aggression और irritability, जो कि ADHD and autism दोनों के later stages में अक्सर देखे जाते हैं. So how we are going to differentiate between autism and ADHD? Like जिसमें दोनों same symptoms अक्सर हमें देख रहे होते हैं बच्चों में. I'm sorry. Yes. किससे कर रही हो? Please identify the speaker as well. Yes, Dr. Shagufta. जी, Dr. Shagufta. अच्छा, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये आजकल वाकई बहुत ही ये चीज़ डिस्कशन में है, और ये बात आपकी सही है कि ये दोनों ही चीज़ें ऑटिज्म में भी और ADHD में आपको इकट्ठी अलग-अलग देखने को भी मिलती हैं, और इकट्ठे भी बाज़ दफ़ा इसमें ओवरलैप आ जाता है। आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि ADHD इज़ ऑल्सो को करिंग कंडीशन विद ऑटिज्म। तो Yes. इट इज़ नॉट, हाँ जी, इट इज़ नॉट, आई वुडंट बी सरप्राइज अगर किसी बच्चे में ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन देन गोइंग बैक टू द सेम थिंग कि अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि उस बच्चे को एग्रेशन या इरिटेबिलिटी आ किस लिए रही है, एंड यू फोकस ऑन दैट, तो चाहे बच्चा ADHD है, ऑटिस्टिक है या ODHD है, दोनों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड इट। ओके, सो आई वुड लाइक टू क्वेश्चन एक और पूछना चाहती हूँ मैं डॉक्टर आयशा महनाज से कि डॉक्टर आयशा, एक क्वेश्चन आया कि जब ऑटिज्म के बच्चों में प्यूबर्टी वाला स्टेज आता है तो उसमें बहुत ज्यादा उनके इमोशनल, फिजिकली और उनके चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसको हम किस तरह हैंडल करते हैं, और क्या ऐसी कोई रिसोर्सेज, कोई ऐसी चीजें मौजूद है हमारे पास जो कि इस तरह प्यूबर्टी वाले स्टेजेस पे स्पेशल बच्चों के लिए हमें गाइड करती हैं? Kiran, it's a very good question, but unfortunately, I cannot provide you with enough information. आप autism के बच्चों की बात कर रहे हैं. We are also dealing with children and adolescent children. हमने number of workshop किए हैं. Even वो बच्चे जो adolescents में हैं, उनको भी कोई इस तरह की guidance नहीं. This is an area which is most neglected, and we need to take it up. And I think हमारे पास इतने autism experts हैं, तो वो इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं कि वो क्या करते हैं। बट मैं क्विकली एक दो क्वेश्चन अपने स्पीकर से करना चाह रही हूँ, जिसको वो अपने उसमें ले ले। एक तो डॉक्टर मुस्तफा से मैं पूछना चाहूंगी कि उन्होंने बड़ा डिटेल में ड्रग्स के हवाले से बात की है, एंड rightly so people have mentioned that it should not be taken as a first resort, but she has not mentioned anything about the use of diet modification. वो क्या कर सकते हैं, या vitamin B12. As a pediatrician, this is an area where we can give input to the children, to the parents with ADHD. And Shagufta, आपका बड़ा अच्छा talk था relationship development intervention पे. And as you said, this was not a behavioral therapy, which is slightly different from that. पर एक जनरल पीडियाट्रिशियन आप क्या गाइडलाइन देंगी कि वो इसमें क्या कर सकते हैं? तो these two questions अगर ये दोनों स्पीकर्स इसको ले लें तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे।
Dr. Mustafa first. Dr. Mustafa. Is he around? मेरे ख्याल में नहीं, Dr. Shagufta. Ji, Dr. Shagufta, you can continue. Thank you so much, Professor Mehnaz, for this question. As a pediatrician, मेरी जो practice है वो इसी के around revolve करती है कि obviously we also have a knowledge about the developmental stages of play in a child. तो जब भी कोई parent RDI के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं या वैसे जनरली भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनको हमेशा जो है आई ब्रिंग देम बैक टू द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द चाइल्ड. फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटा बच्चा है जो कि 1 साल का है और उससे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा शेयरिंग करना शुरू कर दे बाकी बच्चों के साथ, तो वो बच्चा डेवलपमेंटली उस चीज़ के लिए अभी रेडी भी नहीं होता. तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को एक पैथोलॉजिकल चीज़ बना के प्रेजेंट करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो शेयर नहीं करता. तो आई ऑलवेज ब्रिंग बैक दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस इनटू प्ले, जब कि पेरेंट्स को इस चीज़ का भी पता हो कि कौन सी चीज़ इस एज पे नॉर्मल है, ताकि वो एक नॉर्मल चीज़ जो उस टाइम पे अकर कर रही है उस चीज़ को पैथोलॉजाइज करके अपने से खुद से चीज़ें जो है वो उनको सोचना ना शुरू कर दें. Nice. सिर्फ एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि क्या ऐसे पॉसिबल है कि आप स्मॉल वीडियो या एनिमेशंस बनाएं how parents or people who are not trained in autism management like general pediatrician and general physician can use it initially in their practices so that these children are directed in a nice way. क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहनाज, बिकॉज अभी हम इस चीज़ के ऊपर हमने अभी जस्ट रिसेंटली वी स्टार्टेड वर्किंग विद अ गेमिंग कंपनी जिनके साथ मिलकर हम इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस बनाएंगे जो कि पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए जो है दे विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह. और जो अभी थोड़ी देर पहले ये जो प्यूबर्टी के बारे में क्वेश्चन हुआ था, हमने मल्टीपल सेशंस किए हैं इस्लामाबाद में डिफरेंट स्कूल्स में, अपने प्राइवेट लेवल पे भी, स्कूल्स के लेवल पे भी, फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्यूबर्टी इन स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन. तो अगर कोई उस सिलसिले में कोई मदद चाहता है तो वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्स फॉर दैट. Great. We'll be glad to make use of the material you have prepared. I think मोहसिना के हाथ बहुत देर से खड़े हुए हैं. मोहसिना को जी मोहसिना. जी डॉक्टर मोहसिना. मोहसिना आप अपने को अनम्यूट कर लें. Okay, Assalamu alaikum everyone, and excellent talks by everyone, Dr. Azra, Dr. Mustafa and Dr. Shagufta. There are many issues. मेरी भी बहुत आज learning हुई है autism के बारे में, but I am also seeing in each and every OPD 2 or 3 patients who are suspected autism. माँ बाप confirm करने के लिए आ जाते हैं कि आपको लग रहा है या नहीं लग रहा. So there are lots of, I think a patient has, Azra has said rightly, कि बहुत ज़्यादा number increase हो रहा है. So we need to work on the etiology also. Number 2 point ये है कि डॉक्टर अभी puberty के बारे में बहुत सवाल हुए. About yesterday in my clinic, 2 girls of autism came to me and the mothers were very worried कि एक को तो early puberty हो रही थी and the other one has menarche and she was unable to carry herself with all these things. तो I was thinking कि इस पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है कि हमें autistic बच्चों की puberty पे क्या काम करना है. And again, I think Shagufta has rightly said कि हमें इस चीज़ पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है. इसके अलावा भी developmentally challenge जो बच्चे हैं उनकी pubertal issues पर काम करने की बहुत ज़रूरत है. And mothers are asking the questions again and again कि उनकी puberty को कैसे handle किया जाए. और उस पे गाइडलाइंस अभी तक कोई नहीं है. हम सब अपनी जो नॉलेज है और जो बेसिक्स हैं उसके मुताबिक भी हम फैसला कर रहे हैं. But I think we need to work on it also. Number 3, जो एक बात हुई थी कि there are different children. अभी मेरे पास 2 MPS के बच्चे जो कि माँ बाप multiple times therapies करवा रहे हैं, autism की therapies हो रही हैं, but the child was MPS, hurler था या hunter था, इस तरह से है. तो diagnosis is also very important. Fragile X की बात हुई, TS की बात हुई, इसी तरह एक हमने family को diagnose किया जो कि autism treat हो रहे थे. They were a very rare Allen-Head-on-Dudley syndrome जो कि thyroid hormone resistance है. Again and again उनका थायराइड कराया जा रहा था. That was normal. So I think diagnosis में भी हमें थोड़ा काम करने की जरूरत है कि we should have a right diagnosis.
before treating the child as autism, or later on parents इतनी multiple therapies कराते हैं. Bharat, I will summarize myself. Thank you so much, Azra, for arranging this wonderful session. I have learned a lot. I think everyone has learned a lot, and keep on creating the awareness of autism. I would like to thank Dr. Aisha Menaz also, कि उनकी मौजूदगी भी इसको बहुत strengthen करती है. Dr. Shazia Maqbool, Dr. Aisha Menaz, ये pillars हैं developmental pediatrics के, and I think Azra has worked a lot on developmental pediatrics also. Thank you for inviting us and increasing our knowledge. Thank you so much. Thank you. डॉक्टर सलमा खलील इसमें जी छोटी जी सी एक मैं बात करना चाह रही हूँ, वो ये कि ये जो प्यूबर्टी की बात है, इट्स अ बिग टॉपिक, और हमने इस पे किया था, हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी फर्स्ट, उसमें भी किया था, और उसकी शायद रिकॉर्डिंग भी है, तो वो मैं शेयर कर लूंगी. और जैसे कि डॉक्टर शगुफ्ता कह रही कि ये भी करती रही हैं, और डॉक्टर सलमा खलील, अभी मैं उन्हीं का नाम लेना चाह रही थी कि डॉक्टर सलमा भी बहुत कर रही है SDWT की तरफ से, और बहुत अच्छे जी इनके टॉपिक्स होते हैं, कभी हम सुन पाते हैं और कभी नहीं सुन पाते, तो ये भी बहुत कर रही हैं. अभी मौजूद है डॉक्टर सलमा. जी डॉक्टर सलमा. जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग. ऐसा है कि हमने सब काफ़ी साल पहले से प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस पे जो चैलेंजेस हैं, नॉट ओनली विद ASD चिल्ड्रन बट जो दूसरे न्यूरो डाइवर्स हैं, उनसे कैसे डील करना है, और उसमें काफ़ी डिटेल वर्कशॉप्स हैं हमारी. और पहले तो हम एक ओवरऑल करते थे, अब हमने मेल प्यूबर्टी को अलग कर दिया है और फीमेल प्यूबर्टी को एड्रेस करना अलग कर दिया है. वेरी गुड. उसमें हम बहुत सारे सेंसिटिव टॉपिक्स जिनको कोई टच नहीं करता, लाइक मेस्टरबेशन हो गई, हाउ टू डील विद नॉक्टर्नल एजुकेशन. ASD वेलफेयर ट्रस्ट इस पर पूरी गाइडलाइन देता है, सोशल स्टोरीज डेवलप करना बताता है कि हाउ द पेरेंट्स कुड रीच, और ये पीडियाट्रिक्स को भी हम ये गाइडलाइन दे सकते हैं. व्हेन एवर दीज और वर्कशॉप्स आर फ्री. मैरी स्टूप सोसाइटी के अंडर हम कमिंग फ्राइडे को प्यूबर्टी इन मेल पे करने जा रहे हैं विद पर्सन PWDs के साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं. तो व्हेन एवर यू विल आस्क, वी आर रेडी टू डू इट फॉर यू. थैंक यू. So थैंक यू. so much. सलमा, ये We अगर will वेबिनार arrange, we will recently arrange from the जी platform of the Autism Without Border. We will या arrange with you. थैंक सलमा, यू. ये आप अगर वेबिनार कर रही हैं तो उसका लिंक शेयर करिएगा, इंशाल्लाह वी विल जॉइन. जी जी, हम आपको कर देंगे. और सेकेंडली मैं ये बता दूं कि हम लोग सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो हमारी कॉग्निशन को, थिंकिंग प्रोसेस को, और जो उसका रिफ्लेक्शन फिर आपके जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उन सब पे आता है. रिसेंटली हमने मेनोपॉज पे किया एंड इट वाज रियल सक्सेस Yes, फॉर अस. yes. थैंक यू. थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमा. बिल्कुल, मैं सारे जो भी हमारे हैं, डॉक्टर सलमा हैं, डॉक्टर शगुफ्ता हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सारा अगर रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर सकें, लिंक शेयर कर सकें. हमारी भी जो हुई थी वो हम यूट्यूब का लिंक उसका शेयर करेंगे प्यूबर्टी पे ग्रुप में, ताकि जो भी पेरेंट्स हैं जो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके. अब मैं चाहूंगी कि हम प्रोफेसर डॉक्टर वसीम जमालवी से भी सुन लें. वो बेचारे कहेंगे हमसे कहीं हमने राय नहीं ली है, तो मैं सर ये अगर आप देख रही थी कि हैं. डॉक्टर साहब हैं जी कि नहीं. जी जी, वो पहले तो मौजूद थे. सर अगर आप हैं तो प्लीज शेयर करें, अपना इनपुट दें. आई थिंक सो वो लीव कर गए हैं. का वरना मैसेज फिर आया वो प्रोफेसर डॉक्टर लीव आयशा कर मेहनाज से मेरा ख्याल है हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स कर लेते हैं मेरे ना. ख्याल में वसीम है. वसीम, आप हैं जी आप जी हैं, बात अच्छा. करेंगे. जी डॉक्टर वसीम. सर का मैसेज आया वो लीव कर गए. अच्छा ओ अच्छा, ओके ठीक है. हाँ, तो प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मेहनाज से हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी. चाहेंगे, और क्योंकि कुछ टाइम मैनेजमेंट हमारे इतना अच्छा हम नहीं कर पाए और काफी देर हो गई, बट वी लर्न अ लॉट. एक्चुअली मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह. टॉपिक सारे जी इतने आयशा. वास्ट थे, और हम डॉक्टर शगुफ्ता से भी इंशाल्लाह इस पे हाँ, RDI पे पूरा अलहदा से एक सेशन रखेंगे, क्योंकि देयर इज टू मच टू लर्न. और तो आई एम सो सॉरी कि इसमें टाइम मैनेज नहीं हो सका प्रॉपर. और डॉक्टर मुस्तफा और से भी हम जी दोबारा जी करवाएंगे जी इंशाल्लाह. बिल्कुल इंशाल्लाह. तो ओवर टू यू डॉक्टर आयशा. थैंक यू.
Thank you, Nadia, and thank you, Kiran, for joining hands with me and smoothly running this panel discussion. First of all, I would like to congratulate Autism Without Borders, Pakistan Pediatric Association, for joining hands with us in organizing such a successful webinar. All the three speakers, Dr. Azra, Dr. Mustafa, and Dr. Shagufta. Sorry, I don't know Dr. Shagufta is a doctor or not, but anyway. For us, anybody who is teaching us is a doctor, because literally the word doctor means teacher. So you all are a teacher, and you have shared such wealth of information with us on nearly all aspects of it. Dr. Azra has given a very explicit explanation of autism. Those of us who are not very well versed into this disorder can get has gotten a clear idea about what autism सॉरी टू is. इंटरप्ट यू डॉक्टर आयशा, आपकी आवाज बहुत इको कर रही है. अच्छा, एक मिनट. ओके, अभी ठीक है? जी जी, वो आई थिंक आपकी वॉइस में इको बहुत आ रहा है फोन की वजह से. Okay, I think I should move to the other place. Now is it okay? या इट्स मच बेटर. Okay. Yes, much better. Finally, Dr. Mustafa, I have a number of questions for him, but because of the lackage of time, it was not possible. So maybe next time, and I think we need to touch upon the dietary therapy of autism. Maybe Dr. Azra can make a note of it, and next time we can have a dietary and a micronutrient therapy in cases of an autism. And finally, Dr. Shagufta, that was a very heart-touching presentation on RDI, and I would like to learn more and more about it. Maybe we should all take note that it's time that we should start preparing guidelines on various aspects of not only autism, but in adolescents as well. So I'd like to thank you very much for giving me an information and making me a part of this very, very important webinar. So I wish good luck to everyone and have a nice weekend. Thank you so much. Thank you so much, Thanks, Dr. thanks Aisha. a lot to और all the guest speakers and participants. Yes. जी थैंक यू. जस्ट लाइक डॉक्टर शगुफ्ता इज अ पीडियाट्रिशियन, तो वो आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा. शी इज आल्सो अ मेडिकल डॉक्टर, शी इज अ पीडियाट्रिशियन, एंड शी इज आल्सो लाइक शी हैज क्वाइट अ लॉट थिंग्स विद हर ऑन हर टेबल टू गिव अस. तो इंशाल्लाह हम इनसे अच्छा, इसमें मुस्तफीद जो है होते ना रहेंगे. जी नादिया, जी एक चीज मैं ऐड करना चाह जी रही हूँ जी कि डॉक्टर शगुफ्ता जैसे कि डॉक्टर भी हैं और जी जी पीडियाट्रिशियन हैं, और ये आरडीआई का तो एक और डॉक्टर अनीका सुहेल वो भी जी ज्वाइन जी करना चाह रही थी, मगर क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी बहुत ही सो सॉरी टू रिफ्यूज, क्योंकि ज़ाहिर है हम ऑलरेडी थोड़ा सा थे, तो हमने कहा हम दोबारा आरडीआई पे फिर करेंगे जिसमें डॉक्टर अनीका सुहेल और डॉक्टर शगुफ्ता दोनों को हम, क्योंकि ये इंशाल्लाह. बहुत अच्छा प्रोग्राम है ना. वी ऑल मस्ट लर्न दिस प्रोग्राम, है ना. एंड सेम गोज फॉर जैसे आरडीआई है, वैसे एक इंटेंसिव इंटरेक्शन प्रोग्राम होता है जो मैंने अपने एमएससी ऑटिज्म में पढ़ा. और इट्स ऑल सेम कि बच्चों के साथ इनके साथ इंटेंसिव इंटरेक्शन कैसे करके हम इनको हेल्प कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं. और जैसे आरडीआई या सनराइज प्रोग्राम पेरेंट्स से रिलेटेड है मोस्टली. द इंटेंसिव इंटरेक्शन इज इवन फॉर द थेरेपिस्ट या एजुकेशनिस्ट जो बच्चों के साथ काम करते हैं. और इसमें मैं बस यही ऐड करना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर शगुफ्ता ने कहा, तो उसमें बहुत ज़रूरी है ट्रांजिशन सपोर्ट, क्योंकि जैसे कि ये चेंज को रेजिस्ट करते हैं बच्चे, तो इसमें हमें उनको जो बाहर की कंट्रीज है लाइक, तो उसमें ट्रांजिशन सपोर्ट बहुत उस पर वर्क किया जाता है. इफ़ अ चाइल्ड इज मूविंग फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू अ सेकेंडरी स्कूल, तो उसको पूरा वो एक उनका प्रोग्राम बनता है कि वो 8 to 9 days वो जाते हैं सेकेंडरी में. सेम गोज फॉर व्हेन ही इज लीविंग स्कूल एंड मूविंग टू अ एडल्ट लाइफ. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि ये हम इस पे वर्क करें एज अ सोसाइटी और इधर पाकिस्तान में, एंड वी कैन डू वंडर्स इंशाल्लाह. सर नौशाद से मेरा ख्याल कमेंट ले लें, क्योंकि वो जी हमारे जी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और बहुत ही मोटिवेटिंग है सबके जी लिए. जी सर जी. नौशाद अगर मौजूद हैं तो. सर नौशाद आप हैं इधर मौजूद हमारे साथ? सर नौशाद आखिरी वक्त तक रहे हैं, हम मेरे ख्याल से हो सकता है अब जी उन्होंने तो लीव कर दी. मौजूद है, बट आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग. हम्म. जी सर नौशाद, आर यू हियर? नहीं, आई थिंक सो वो लीव कर मेरा ख्याल चुके है कि हैं. अब एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर जी जी
लेकिन जी, वो नमाज का जी भी जी सारे मेरे ख्याल से वो चले गए होंगे उसके लिए। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन, और टू ऑल द respected panelists, speakers, and our respected chairperson, and to all the participants for being there and listening to us. It was really wonderful having you all, और आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। इवन अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हैं आपके आंसर होने से, तो प्लीज, अब हमारे पैनलिस्ट और स्पीकर सभी ग्रुप में मौजूद हैं, तो आप उधर कर सकते हैं। जब भी उन्हें टाइम मिलेगा, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्यूरीज। थैंक यू सो मच, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। Thank you so much, Miss Nadia, आपका भी for being the Thank you. moderator of this webinar. आप बहुत busy होती हैं, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, and thank you so much all the speakers and panelists. Inshallah, we will meet you in the next webinar soon. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.